অনেক জনেরই হচ্ছে না বলছে যখন। ওকে, so what was the problem they have given? Okay, so actually I have given assignment on the Kennedy's theory of canal design, and here it is unlined canal design. Okay, please remember, if they have asked you, so in many questions they won't ask you to do numerical based on Kennedy's theory. They simply give you some data and they will ask you to do design for unlined canal. Okay, so you have to see the questions and then you have to understand that which method is to be followed. Okay, but in the question I have already asked you to use this Kennedy's theory. Okay, and Kennedy theory is for designing the unlined canal only. Okay. So this is the formula that we will use. Okay, Kennedy has derived this formula. So you have to remember this formula when it comes in your, they have asked you for doing the design as per Kennedy theory. Okay, so V naught is the critical velocity, 0.546, m is the critical velocity ratio, okay, and d is the depth of the water in the canal. This is in meter, this is unitless, and this is meter per second. Okay. So first is what we have to assume. There are mainly 3 steps. Okay, 3 step is what? First we need to assume some value of d if it is not given. Okay, then using that value of d we need to find the critical velocity. What is this? Just a minute. Okay. No attendance. So these are the steps. So first we need to do a trial depth. If the depth is not provided to you, then we need to find critical velocity. Okay, and using the continuity equation, we need to find the other parameters like cross-sectional area, perimeter, weighted perimeter, or hydraulic radius. Okay, or hydraulic radius, which is R. Okay. So using this continuity equation, we can calculate this our cross-sectional element. Here design means what? We have to design the cross-sectional element only. That means what should be the depth of the section, what should be the canal design means what? This is here, see, it is a trapezoidal, or as I said, there will be it is looking like a trapezoidal in shape. Okay. So what should be the slope of this embankment? What should be the side slope? Okay, what should be the breadth of this river bed? Okay, and what should be the depth of the water? Okay, so these are the design that we must do, and also we need to find other parameters like weighted perimeter, cross sectional area, and here hydraulic mean depth, which is R. Okay, and R is area by perimeter, area by weighted perimeter. So these are the steps. First, assume d value, then find critical velocity, then using continuity equation, we can find the cross-sectional parameter. Then at the last, we need to use some methods. Okay, there are many types of the method for calculating the mean depth, and we have to check this value whether this mean depth is equal to critical velocity or not. If so, then whatever the parameter that we have designed is okay. If not, then we have to go for the second trial. That means we have to change this depth, or we have to change all the parameters. Then again we have to determine this v. Okay, then we calculate, we will see whether this v is equal to v naught or not. Okay. So using Cutter equation means we have to use this equation. This is the equation for determining the V value. See here, as I said, these are the different methods for determining, or different equations for determining the mean velocity V. Okay. In your question, it is given Cutter, so we must use this equation. Okay. In many questions, they will give you Manning coefficient.
In that case, we have to use this equation, okay? And in many cases, they will give you changes constant, C. Okay, so we have to use this value. Okay, since in your question, Cutter's coefficient value is already given, and this capital N is also given, which is the rugosity coefficient. So they have asked you to use this equation for determining the mean velocity V. I think this is clear. Okay, so these are the broad step. Now we will see there are two cases. There may be two cases. In problem, these are the given data. Q is the discharge of the flow, N is the coefficient of rugosity, M is your critical velocity, okay, ratio, and S is the your longitudinal slope, bed slope. Here S is given, bed slope. So we have to follow these steps. Okay, but in your question, these are the data they have provided you. So we are using this method, or we can say we are using this step, or we will follow this step for doing the design of line canal. Okay, so these are the steps that we need to follow if this data are provided to you. We will see that in question these are given to you. Okay. So see here. Where is the question? I think this is the question. This is the question, I think, right? See. Design the irrigation canal by Kennedy's theory, okay, for given data. Discharge given, Q given, coefficient of rugosity, N, capital N given, okay. Critical velocity ratio given, B by D ratio is also given, and side slope is also given. If not given, then please assume this data, okay, if not provided. But in your question, it is already provided. Where side slope means what? 1 is vertical and 0.5 is horizontal. That is 1 in 1 in 0.5 is the side slope for that particular cross section. Okay, so see, these are the data given to you. Okay, Q given, N given, M given, B by D is also given. Okay, now since this data are given, so you have to follow the second procedure, which is this one. Okay, see, what is the first step? Calculate A. This is the formula for the if your cross section is trapezoidal, then this is your formula. Okay, we have already derived this formula, and this is the weighted perimeter formula for a trapezoidal section. Okay, where X is what? X is the side slope, horizontal portion of the side slope. See here, X will be your 0.5. 0.5 is horizontal value of the slope, so X value will be 0.5. Okay, so B into D plus XD square. So calculate this first. Okay, then we will derive V naught in terms of D. Okay, D, V naught we will calculate. Then we will go for Q is given to you. Okay, V naught we have derived in terms of D, and A also in terms of D we will derive. So we will get one equation. Okay, so using these steps we can see, let us see, okay, how we are solving. Calculate A in terms of D using this equation. This was the first method. Okay, this is the first step. Okay, so calculate A. For A, what we need to have? B by B D X D square. Okay, here X is known to us. X was what? X was your horizontal portion of the slope, that is 0.5. Okay, and BD, we have to convert this B into in terms of D. See, B by D is what? 10.5. In question, your B by D is 10.5. So B will be 10.5 times of D. Okay, simply substitute the value. Put B equals to 10.5 D, X equals to 0.5 D, then we are getting this equation. Okay, see, B is equals to 10.5 D into D plus 0.5 D square. So both are D square, we will simply add. We are getting A equals to
A इक्वल्स टू वी आर गेटिंग, देखो कितना आ रहा है A का वैल्यू 11D, ये एक इक्वेशन आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कैलकुलेट V नॉट in terms of D. See, D is unknown to us. Okay, D हमको नहीं पता है, so अभी हम D के terms में सब कुछ निकाल रहे हैं। Okay, see V naught is equals to 0.546 m D. Okay, m का वैल्यू कितना है, critical velocity is 1। ठीक है, अब इसको 0.456 into 1 into D करके ये वाला आ रहा है। ओके, so V naught is equals to this value। A इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ D ये है, V नॉट इन टर्म्स ऑफ D ये वाला है। ओके, नाउ कैलकुलेट, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके D का वैल्यू निकालो, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो तो। सी Q इज गिवन 50, ओके, A इज 11 D स्क्वायर, V नॉट इज 0.546, कितना है, D टू द पावर 0.64 है। ठीक है, तो कितना आएगा, ये इसकी जगह पर 50 बिठाओ, इसकी जगह पर 11D स्क्वायर बिठाओ, इसकी जगह पर 0.546 D टू द पावर 0.64 बिठाओ। ओके, सो वी आर गेटिंग सी 50 इक्वल्स टू 11D स्क्वायर 0.546 D टू द पावर 0.64। ठीक है, तो 2 प्लस 0.64 इज गिविंग अस 2.64। ठीक है, ये दोनों को इनटू कर दोगे तो 6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। तो यहाँ पे अननोन क्या है, D अननोन है, तो जस्ट सिंपली यूज दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट D। D कितना आएगा बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, जिस लोगों ने कैलकुलेट किया है बोलो कितना आ रहा है। 2.23 मैम। 0.23, 2.23, यस 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 2.23 मीटर। ओके, सी अब 2.23 आ गया है तो A भी आ जाएगा, निकालो A का वैल्यू कितना आएगा, नहीं पहले B का वैल्यू निकालो। B इज इक्वल टू क्या है 10.5 इंटू D, A इज इक्वल टू कितना है 11 D स्क्वायर है। ठीक है, निकालो तो। ठीक है, ए बी है 10.5 डी, ए है 11 डी स्क्वायर, वी नॉट है इतना, सो बी का वैल्यू कितना आएगा 23.42। हाँ 23.43। ए का वैल्यू 54.7। 54.7, वेरी गुड। वी नॉट 0.912। हाँ 0.912 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये सब तो आ गया। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी भी तुमको आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, आर चाहिए और एक पैरामीटर चाहिए। आर के लिए क्या चाहिए, वी नीड आर इक्वल्स टू ए बाई पी, पी चाहिए पहले। ठीक है, सो कैलकुलेट पी। तो देखो P में B, ये है फॉर्मूला, अगेन ट्रेपेजोइडल सेक्शन अगर पकड़ोगे तो पेरिबेटेड पेरीमीटर का ये फॉर्मूला डिराइव हम लोगों ने किया है। ओके, तो जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, सब पता है हमको, B पता है, D पता है, X का वैल्यू भी पता है। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P, 28.41 मैम। 28.41, हाँ 28.416 मीटर, वेरी गुड। ठीक है, नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ A, यू गॉट द वैल्यू ऑफ P। इससे हमको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R इक्वल्स टू क्या है, A बाई P है, निकालो कितना आएगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ A बाई P, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, P इज इन मीटर, सो यूनिट विल बी मीटर। ओके, 1.93 मैम। 1.93। ठीक है, तो ये वाला क्या था, ये वाला था हम लोग का ट्रेपेजोइडल सेक्शन या कैनल सेक्शन का पैरामीटर्स जो हमको डिजाइन करना है। मतलब B इतना आ रहा है, एरिया इतना आ रहा है, ठीक है, पेरीमीटर इतना आ रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सो दीज आर द डिजाइन पैरामीटर्स, राइट। क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इससे हमको पता चल जाएगा, वी कैन इजीली डिजाइन, अगर ये सब हमको पता है तो। ठीक है, अब क्या करना है, चेक करना है। चेक मतलब क्या है, देखो सब डिजाइन में व्हाट वी डू, वी विल एज्यूम समथिंग, ठीक है, फिर वी विल चेक, डू चेक, राइट, कि ये वाला जो भी हम लोगों ने डिजाइन किया था वो सही है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चेक क्या है, यहाँ पे चेक करना है हमको अब ये वाला सेक्शन यूज करके, अगर ये वाला सेक्शन हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसमें से जो भी फ्लो होगा, स्ट्रीम जो या कैनल से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका मीन वेलोसिटी कितना है वो पहले निकालना है। ओके, तो मीन वेलोसिटी जो आएगा, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से बराबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जहां पे तुम्हारा नो स्कोरिंग, नो सिल्टिंग कंडीशन ऑकर्स। नो स्कोरिंग मतलब कि इरोशन नहीं होगा, और नो सिल्टिंग मतलब कोई डिपोजिशन भी नहीं होगा। अगर इरोशन हो जाएगा तो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल चेंज होता जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, अगेन ये कैनल जो डिजाइन किए थे वो सही नहीं रहेगा, राइट।
अगेन सिल्टिंग मतलब डिपोजिशन अगर होता होता जाएगा, जो भी पार्टिकल्स कैरी करके आ रहे हो अगर सिल्ट होता जाएगा तो फिर से रिवर बेड थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो रिवर बेड अगर ऊपर हो जाएगा तो तुम्हारा फिर से क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो सही डिस्चार्ज मतलब जिस फ्लो में जाना जाएगा पानी उस फ्लो में नहीं आएगा। सो क्रिटिकल वेलोसिटी में अगर तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा दैट मीन्स वहां पे सिल्टिंग भी नहीं होगा, स्कोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव टू डिजाइन सच अ वे दैट आवर मीन वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसा होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो हमको इतना आ रहा है, तो हमको चेक करना है कि हम लोग का मीन वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आवर दिस वैल्यू और नॉट, ओके, यूजिंग दिस डाटा। नाउ तो ट्रायल करना है, अब हमको ट्रायल करना है, ओके। तो ट्रायल के लिए क्या बोले थे हम लोगों ने, बोला था एज्यूम करना है, कुछ डाटा एज्यूम करना है। यहाँ पे तो ये सब तो हो गया, ये सब डाटा फिक्स्ड कर देंगे हम लोग, ओके। नाउ फिक्सिंग दिस डाटा व्हाट वी विल एज्यूम, वी विल एज्यूम द स्लोप, मतलब बेड स्लोप। बेड स्लोप क्या होता है, रिवर या कोई भी रिवर में स्ट्रीम को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए, राइट। तो बेड स्लोप हमको एज्यूम करना है, वो दिया नहीं गया था, तो वी हैव टू एज्यूम दिस, ठीक है। कोई कोई इसको 4000 मतलब स्टार्टिंग करना 4500 से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये करते करते जाना है ट्रायल, ओके। तो ये फर्स्ट ट्रायल में हम लोग ने किया 1/5000 एज्यूम कर दिया, ओके। अब यूजिंग दिस स्लोप डिटरमाइन द मीन वेलोसिटी यूजिंग कटर्स इक्वेशंस, ओके। सो कटर्स इक्वेशन ये है तुम्हारा, देखो इतना बड़ा है इक्वेशन, कटर्स इक्वेशन, ओके। whereas 1/n rugosity coefficient given क्वेश्चन में, s is the slope, मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा 1/5000, ओके। यहाँ पे s का वैल्यू होगा 1/5000, r हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो करके तो इसमें पुट कर दो, तो 1/5000 पुट करके देखो ये सब वैल्यू वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, r का 1.927 आया था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, okay. So after calculating this in this first trial we are getting v as 0.996, ठीक है। ये वाला मीन वेलोसिटी है 0.996 और लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी है तुम लोग का कितना 0.912। सो इसमें क्या होगा, सिल्टिंग होगा ना स्कोरिंग हो जाएगा, बोलो सिल्टिंग होगा स्कोरिंग, क्योंकि देखो ये वाला इसमें कोई सिल्ट भी नहीं होगा, कोई स्कोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। एक स्पीड से जा रहा है, अगर इस स्पीड से जाएगा तो पूरा फ्लो होता रहेगा, पार्टिकल्स विल नॉट स्कोर द रिवर बेड पार्टिकल्स एंड इट विल नॉट गेट डिपोजिटेड, ओके। लेकिन ये बहुत ज्यादा उससे ज्यादा स्पीड से आ रहा है, मतलब क्या, अब वो जो भी रिवर बेड का पार्टिकल्स या साइड स्लोप्स का पार्टिकल्स है उसको वो इरोशन करते करते स्कोर करते करते जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ अगेन, वी विल, तो ये क्या करेंगे, स्पीड को रिड्यूस करना है हमको, मतलब ये क्रिटिकल वेलोसिटी 0.91 है और इसका 0.99 आ रहा है, इसको स्पीड को रिड्यूस करना है। तो स्लोप को क्या कर देना है हमको, बढ़ा देना है ना घटा देना है, बेड स्लोप को बढ़ा तो है मैम, मतलब ये वाला बढ़ाते नहीं, हम लोग को ये स्लोप को मतलब जेंटल कर देना है, राइट। सपोज अगर स्टीप स्लोप हो रहा है, मतलब ज्यादा स्टीप होने से तो ज्यादा स्टीप होने से ज्यादा स्पीड में फ्लो करेगा रिवर, राइट। तो ये ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा आ रहा है, राइट। तो हमको क्या करना है, ये वाला वैल्यू को कम कर देना है, मतलब कि स्लोप को और कम कर देना, जेंटल कर देना है, ठीक है। तो स्लोप को जेंटल करने के लिए ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू को बढ़ा देना है। तो नेक्स्ट ट्रायल में हमने क्या किया, ये 5000 के बदले हमने 6000 कर दिया, ओके। अब तुम लोग 5500 भी करते हो, 5500 हमने किया था उसमें भी नहीं आ रहा था ये, तब भी ये ज्यादा आ रहा था, ये वाला वैल्यू इससे बहुत ज्यादा आ रहा था, ओके। सो आई हैव गॉन टू 1/6000 इन द नेक्स्ट ट्रायल, ओके। सो न्यू वैल्यू ऑफ एस एंड अगेन रिपीट, ये सिर्फ 1/6000 किया। अब यूज करके बोलो कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो 1/6000 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी आर गेटिंग v एज 0.902, ठीक है। अगर तुम लोग अप्रोक्स मतलब इसको और एक्यूरेट वे में भी कर सकते हो, मैंने 6000 में तुम्हारा ये आ रहा है, मतलब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें स्टॉप कर दिया, ठीक है। आई हैव एज्यूम दैट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, इसलिए हम और ट्रायल नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग कर सकते हो, ओके। तुम लोग कर सकते हो कि 5000 से फिर 5800,
5500, 5600, 5700, 5800 करते करते जाओगे, ठीक है। तो किसी ना किसी में देखना ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू, क्लियर। तो क्या पुलअप का कितना आ रहा था ये वाला, इन विच दिस बोथ द वैल्यू 1/5869। हाँ 1/5869, ओके। उन लोगों ने कुछ दूसरा टेक्निक करके किया है, ठीक है। सो यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, क्लियर प्रीतम, ক্লিয়ার হয়েছে প্রীতম? হ্যাঁ ম্যাম, না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে, কিন্তু আরেকবার এই ভি ইকুয়ালস টু জায়গাটা একবার বললে আমার ভালো হয়, মানে ওই সি কোনটা হলো? এই ট্রায়ালের ব্যাপারটা একবার। सी ट्रायल में क्या करना है हमको, ये जो फॉर्मूला है देखो, यू हैव टू यूज कटर्स इक्वेशन, कटर्स मतलब ये वाला इक्वेशन बड़ा वाला, ठीक है। इसमें n क्या है, 1/n इज द कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी, ये जो दिया गया है, सॉरी ये जो दिया गया है 0.025 कैपिटल है, ठीक है। दिस s इज द स्लोप, बेड स्लोप, मतलब यहाँ पे जो एज्यूम किया वही वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, मतलब 1/6000 किया है तो यहाँ पे 1/6000, ओके। ये तो पूरा ब्रैकेट हो गया। अब नीचे क्या है, n/√r, r इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, a/p 1.927 जो आया था, ठीक है। √r into s, r है अगेन 1.927 हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, s इज योर स्लोप, मतलब जो तुम दिए थे 1/6000 या 1/5000 वो बिठेगा, ओके। सिंपली सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट, ये वाला सब कैलकुलेट करो, एक एक करके करो। अगर एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो पहले ये करो, फिर ये वाला करो, फिर ये वाला करो, फिर तुमको डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालो, ओके क्लियर। सो दिस इज द मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का हम बोले थे 3 फॉर्मूला था वहां पे, राइट। तो कटर्स बोला था तो इसलिए कटर्स इक्वेशन ये वाला यूज किया हम लोगों ने। अब से योर मीन वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तभी हम लोग का जो भी एजम्पशन है, एजम्पशन मतलब ये वाला, ठीक है, दैट इज करेक्ट। मतलब ब्रेथ, डेप्थ, एरिया, पेरीमीटर सब तो निकाल चुके, सिर्फ बेड स्लोप बाकी था, राइट। तो ये वाला एजम्पशन में हम लोगों का ये v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू v नॉट, सो नो नीड टू गो फॉर द सेकेंड ट्रायल और फर्दर ट्रायल। तब इसको हम फिक्स कर देंगे कि s का वैल्यू हम यही लेकर चलेंगे, ओके। So these are the given parameters and these are the required design parameters। हम लोगों ने जो डिजाइन किया, d पहले डिजाइन किया था, देन v निकाला था, ठीक है। ये 1/x तो गिवन ही था, ठीक है। एरिया निकाला, फिर पैरामीटर, फिर r, फिर v नॉट, फिर लास्ट में बेड स्लोप। तो यही डिजाइन है, ओके क्लियर। হ্যাঁ ম্যাम। नाउ अच्छा, अब दूसरा क्या है, बाकी लोग को क्लियर है? व्हाट अबाउट द अदर्स, अर्पण, शुभजीत दत्तो, ম্যাম ওই बोलो। ওই ফর্মুলাটা যেখানে পুট করলেন v ইকুয়ালস টু ওইটা ওই স্লাইডটা ওখানটি দেখান ম্যাম একবার। এই যে দেখো, এই दिस इज द कटर इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको चेजिस कांस्टेंट दे देगा, मैनिंस कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, मैनिंस कोफिशिएंट। देन इन दैट केस यू हैव टू यूज सी। मैंने 3 फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, कहाँ पे गया, सी फॉर डिटरमाइनिंग मीन वेलोसिटी। कटर्स का ये वाला फॉर्मूला है, मैनिंग्स का ये वाला है, चेजिस का ये वाला है। सब में स्लोप है, सब में जरा आर और एस लगेगा, ठीक है। सिर्फ कोफिशिएंट चेंज हो जा रहा है, चेजिस में चेजिस कोफिशिएंट आ रहा है, मैनिंग्स में मैनिंग्स कोफिशिएंट और कटर्स में रुगोसिटी कोफिशिएंट, ओके। इज इट क्लियर नाउ अर्पण? यस मैम। ओके ठीक है, देन लेट अस गो टू द आवर नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम व्हिच वाज योर C703C। सेम प्रॉब्लम जो नोट्स दिया है उसमें सेम है, सिर्फ यहाँ पे 1000 था वहां पे और यहाँ पे हमने 6600 दे दिया है, बाकी सब सेम डाटा है, राइट। तो करना क्या है इसमें, सी इन दिस मेथड दे हैव आस्क्ड यू टू सी, ये वाला क्वेश्चन आने से ऑप्टिमम साइकिल लेंथ बोलेगा, मतलब यू हैव टू यूज वेबस्टर मेथड। सिंपली मतलब लिख लो कि वेबस्टर मेथड से तुमको बोला गया है करने के लिए, ओके, डिजाइन करने के लिए। सी हियर आल्सो नाउ दिस इज अगेन
अब कंफ्यूज मत हो जाना, पिछला वाला असाइनमेंट वाज योर हाई वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का जो था, ठीक है, कैनल डिजाइन वाला, इरिगेशन कैनल डिजाइन, ठीक है। और ये वाला है तुम्हारा एडवांस हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मॉड्यूल है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसका एक असाइनमेंट। ओके, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर एक चैप्टर था क्या, सिग्नल डिजाइन, ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे भी डिजाइन ही बोला गया है। अब यहाँ पे डिजाइन मतलब अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द पैरामीटर्स, राइट। अब यहाँ पे क्या पैरामीटर है, सिग्नल में क्या बेसिकली शो करता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, राइट, ऐसा सिग्नल, एम्बर सिग्नल, ये सब शो करता है। सो हमको वो डिजाइन करने के लिए बोला गया, मतलब कि टाइम डिजाइन, ठीक है। कितना टाइम रेड होगा, कितना टाइम ग्रीन होगा, कितना टाइम येलो, येलो तो दे ही दिया है 2 सेकेंड, बाकी का 2 निकालो, मतलब ग्रीन और रेड कितना होगा। अब ये तीनों को मिलाकर ही तुम्हारा क्या हो जाता है, साइकिल लेंथ होता है। ग्रीन प्लस रेड प्लस एम्बर तीनों को मिलाकर एक साइकिल होता है। साइकिल मतलब कि ग्रीन स्टार्ट हुआ, फिर रेड स्टार्ट हुआ, फिर एम्बर स्टार्ट हुआ, अब नेक्स्ट में जाके फिर से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। मतलब फर्स्ट ग्रीन से लेकर सेकेंड ग्रीन का जितना टाइम लगा दैट इज 1 साइकिल, क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से साइकिलिक प्रोसेस में रिपीट होगा, फिर से वही ग्रीन रेड, उतना ही रेड, फिर उतना ही एम्बर, ऐसा होगा, राइट। सो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, मतलब फर्स्ट ग्रीन टू सेकेंड ग्रीन जितना टाइम लगेगा दैट इज द साइकिल लेंथ। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो सेम प्रॉब्लम है, यही है, देखो तो यहाँ पे 1000 था, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आर द डाटा दैट दे हैव गिवन। अब यहाँ पे देखो कई सारे प्रॉब्लम में नॉर्थ से कोई कोई व्हीकल सीधा जाएगा, कोई कोई राइट टर्न लेगा, कोई कोई लेफ्ट टर्न लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बोल ही दिया है कि नॉर्थ अप्रोच या नॉर्थ लेक से सबका सब जाएगा स्ट्रेट, साउथ से सबका सब स्ट्रेट, ईस्ट से भी सबका सब स्ट्रेट, मतलब सीधा सीधा जाएगा, कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न वहां पे नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये एक एक वैल्यू यहाँ पे दिया है। कभी कभी प्रॉब्लम में बहुत सारा वैल्यू दे देता है, राइट, 3 वैल्यू देता है, नॉर्थ से 3, साउथ से 3, राइट। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, इन दैट केस वी हैव टू सिंपली एड अप, ठीक है, एड अप कर देंगे अगर 2 फेज सिग्नल बोला गया है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, नॉर्थ से अगर लेफ्ट राइट स्ट्रेट जो भी आ रहा है सबको ऐड कर दो, साउथ से भी वैसे ही ऐड कर दो, ईस्ट से भी ऐड कर दो, वेस्ट से भी ऐड कर दो, ठीक है। फॉर 2 फेज सिग्नल हमको सिर्फ एक ही डाटा चाहिए, एक ही नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब नॉर्थ अप्रोच से कितना व्हीकल्स आएगा, ठीक है, वही उसका एक ही वैल्यू चाहिए। साउथ से कितना आएगा उसका एक वैल्यू, ईस्ट से कितना है, ये सिंपली एकदम सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल है ये वाला। ओके, फ्लो मतलब है व्हीकल पर आवर, फ्लो मींस व्हाट, वॉल्यूम, और फ्लो मींस कितना व्हीकल्स पर आवर रेट में आ रहा है। ओके, और सैचुरेशन फ्लो मतलब है कि मैक्सिमम कितना आएगा, ठीक है, उस अप्रोच से मैक्सिमम कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ डिजाइन करो, ग्रीन टाइम डिजाइन करो, एंड मिनिमम क्या बोले, फॉर मिनिमम ओवरऑल डिले, लॉस्ट टाइम पर फेज ड्यू टू स्ट्रेट डिले एज 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे बोल ही दिया कितना है, 2 फेज सिग्नल, मतलब एक फेज में कितना लॉस होगा, 2 सेकेंड, और 2 फेज जो बोल दिया तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ये वाला भी 4 सेकेंड टोटल लॉस। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एम्बर पीरियड इज गिवन टू यू। और लास्ट में बोला है क्या, ड्रॉ द डायग्राम भी शो करना है हमको, फेज डायग्राम, मतलब कितना टाइम ग्रीन है एक फेज में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, स्केच करके। तो सेम प्रॉब्लम ऐसा ही दीजिए, देखो नॉर्थ से 800 सैचुरेशन है इतना, ईस्ट से 750 सैचुरेशन है इतना, ये 3000 होगा, ठीक है। साउथ से 400 सैचुरेशन है 2000, और यहाँ पे तुम्हारा 1000 के बदले 600, ठीक है। तो इसका भी स्टेप्स था, राइट। व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट क्या क्या गिवन डाटा है, तुम लोग भी करते जाओ, ये मेरे पास 59, इसी को देखकर हम लोग को सॉल्व करना, अभी सॉल्व करना है। ओके, सो कैलकुलेट, सी क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ फेज 2 है, ओके, ठीक है। स्टार्टअप लॉस टाइम दिया है, यहाँ पे स्टार्टअप लॉस टाइम दिया था, स्टार्टअप लॉस टाइम इज 2 सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तुमको दिया है कि लॉस टाइम पर फेज है 2 सेकेंड, ठीक है, लॉस टाइम पर फेज इज 2 सेकेंड, सो टोटल लॉस टाइम विल बी कितना होगा, एक फेज में 2 सेकेंड है तो टोटल लॉस टाइम कितना होना चाहिए, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लॉस टाइम हम लोग को इजीली आ जाएगा, ठीक है,
मतलब देखो अगर स्टार्टअप लॉस टाइम होता तो क्या होता, टोटल लॉस टाइम को हम लोगों ने स्टार्टअप लॉस टाइम और एंड लॉस टाइम में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। मतलब ग्रीन स्टार्ट होने के पहले कुछ लॉस होता है, मतलब कि हम उस टाइम तुरंत यूज नहीं करते इंटरसेक्शन को, तो तब मतलब कितना डिले हो रहा है ये वाला है, ओके। और एक है कि तुम्हारा अच्छा रुको रुको, आई थिंक दिस इज यहाँ पे दे दिया है, लॉस टाइम पर फेज ड्यू टू स्ट्रेट डिले, ओके। I think this is the startup loss time only. 2 सेकेंड, मतलब कि स्टार्टअप लॉस टाइम है कि तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम देखो ग्रीन इंटरसेक्शन के सामने जब आते हो, रेड सिग्नल जब रहता है तो गाड़ी बंद कर देते हो, राइट। बहुत देर से रेड सिग्नल है तो यू विल मतलब उसको स्टॉप कर दोगे व्हीकल को, राइट। तो क्या करोगे फिर उसके बाद अचानक से ग्रीन जब स्टार्ट होता है तुरंत ही एंटर नहीं कर पाते हम लोग इंटरसेक्शन में, ओके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम थोड़ा लेट से जाओ, तुम्हारे पीछे वाला उसको भी थोड़ा लेट से एंट्री मिल रहा है, पीछे से और पीछे जितना भी है सबको लेट हो रहा है, तो क्यूमुलेटिव कितना लेट होगा, मतलब कितना लॉस हो रहा है। ग्रीन आपका स्टार्ट होता है लेकिन इंटरसेक्शन में घुसा ही नहीं है, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव व्हाट इज दैट लॉस, दैट इज द स्टार्टअप लॉस टाइम। तो ये वाला जो है आई थिंक दिस इज दैट वन ओनली, 2 सेकेंड जो होता है, ओके। और एंड लॉस टाइम है कि ग्रीन तुम्हारा क्या बोलते हैं, ग्रीन खत्म नहीं हुआ है, अब ग्रीन स्टार्ट हो गया, गाड़ी एंटर कर दिया, गाड़ी इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहा है, अब ग्रीन चल रहा है लेकिन गाड़ी खत्म हो गया और गाड़ी नहीं जा रहा है और गाड़ी नहीं है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रीन शो कर रहा है, दैट मीन्स तब भी तुम्हारा इंटरसेक्शन इट वाज इन आइडल कंडीशन, राइट। वहां पे तो यूज ही नहीं कर रहा है, व्हीकल यूज ही नहीं कर पा रहे, राइट, आइडल कंडीशन में बैठा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द एंड लॉस टाइम, मतलब ग्रीन स्टार्ट होने के पहले जो लॉस हो रहा है और ग्रीन खत्म जिस तरह जब खत्म होने वाला होता है तब जब हम लोग यूज नहीं करते, दैट टाइम इज द लॉस टाइम, एंड लॉस टाइम, ओके। एंड दिस इज दिस फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करो कितना होगा, L1 इज 2 सेकेंड, ठीक है, 2 यहाँ पे बिठाओगे, N इज व्हाट, N इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं, नंबर ऑफ फेज पर फेज बोला है, राइट। एक फेज में 2 सेकेंड है तो 2 फेज में 2 से कर दो, ठीक है। और एंड लॉस टाइम पर फेज इज I माइनस ए इन N करना है, ओके। तो पर फेज I माइनस है तो दोनों फेज है तो 2 इंटू I माइनस I इंटरग्रीन, ओके। इंटरग्रीन मतलब कि तुम्हारे अप्रोच में जब ग्रीन खत्म होगा और नेक्स्ट अप्रोच में जब ग्रीन होगा, दैट टाइम गैप, वो भी एक होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इंटरग्रीन। तो इफ नॉट गिवन एज्यूम इट एज 4 सेकेंड, तो यहाँ पे पुट कर दो, एम्बर है तुम्हारा कितना 3 सेकेंड है, तो एम्बर का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा टोटल लॉस टाइम, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होगा, तो यहाँ पे होगा 1 2 6 सेकेंड, ठीक है। सो टोटल लॉस टाइम कैपिटल L आ गया तुम्हारा इन दिस केस 6 सेकेंड। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले ऐसा चार्ट बना लेना है हमको, ओके। 2 फेज बोला है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में क्या होगा, नॉर्थ साउथ जो व्हीकल आएगा उनको सिग्नल मिलेगा फेज 1 में, बाकी के लोग मतलब वहां पे ईस्ट और वेस्ट से जो भी उन लोग को रेड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। मतलब ये फेज का मतलब है कि कब कब मतलब साइमल्टेनियस मूवमेंट होगा, ठीक है। जिस फेज में अगर कितना बार साइमल्टेनियस मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं हम लोग, मतलब नॉर्थ और साउथ एक साथ मूव करेगा ये वाला फेज में, ठीक है। और दूसरा वाला फेज में ईस्ट और वेस्ट मूव करेगा, ठीक है। अगर कुछ कुछ होता है कि राइट टर्न के लिए हम अलग सा फेज अगर करते हैं, मतलब ये सब खरा स्ट्रेट वाला जो भी है उन लोग को रेड सिग्नल है, लेकिन राइट टर्न जो ले रहा है उनको लिए एक ग्रीन सिग्नल आएगा, तो तब और एक फेज ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 2 फेज ही बोला है, तो नॉर्थ साउथ के लिए एक फेज दे दिया हम लोगों ने, ईस्ट वेस्ट के लिए एक फेज दे दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 800 400 750 600, ओके। सैचुरेशन फ्लो गिवन, ये सब तो सेम है, गिवन है। अब फ्लो रेट निकालो, तो फ्लो रेट निकालोगे तो क्या होगा, फ्लो रेशियो मतलब क्या है कि कितना आ रहा है बाय मैक्सिमम, Q बाई S, ओके। सो 800 बाई 2400, तो ये आ रहा है 0.3, ठीक है, ये तो सेम डाटा है। ये भी आएगा 400 बाई 2000 0.2, ये भी आएगा, सेम ही आएगा, यही वैल्यू आएगा। ये वाला भी सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो तो, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, दिस विल बी यहाँ पे होगा तुम्हारा सॉरी 600, ओके। यहाँ पे होगा 600, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 600 बाई 3000, कितना आएगा, कत आसছে
ठीक हो, कैलकुलेट करो। 0.2 0.2 राइट, तो यह 0.3 के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.2। ओके, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब जो फ्लो है देखो, नॉर्थ से ये वाला रेशियो आ रहा है, साउथ से ये वाला रेशियो आ रहा है, ठीक है। मतलब सोचो नॉर्थ से इतना प्रोपोर्शन ऑफ व्हीकल आ रहा है, यहाँ इस साउथ से इतना प्रोपोर्शन ऑफ व्हीकल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको फेज, मतलब जब डिजाइन करने के लिए बोला गया, मतलब हमको ग्रीन सिग्नल देना है। फेज मतलब है कि ये दोनों को मूव अलाउ करना है, मतलब ग्रीन सिग्नल देना है, ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल हम किस हिसाब में देंगे, जहां से ज्यादा व्हीकल आएगा उसको ध्यान रख के ही हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ से अगर सपोज 100 व्हीकल आ रहा है, साउथ से 60 व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है। तो 100 व्हीकल्स को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। ग्रीन सिग्नल तो उस हिसाब से ग्रीन इसका ज्यादा होगा, ठीक है, और साउथ को थोड़ा कम लगेगा। अगर हम लोग साउथ के हिसाब से डिजाइन करेंगे, मतलब 60 व्हीकल जितना क्रॉस करेगा उस हिसाब से अगर हम टाइम देंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वहां पे डिले हो जाएगा। तो वी हैव टू कंसीडर फॉर द मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम जिस डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है उस डायरेक्शन पे हम ये वाला पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.33, 0.2 से जो मैक्सिमम है, ये जो Q/S, इसको Y भी बोलते हैं, ओके। Y जो मैक्सिमम है 0.33 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें Y कितना हो जाएगा, Y मैक्सिमम वैल्यू 0.25 0.25, ठीक है। यहाँ पे 0.33, 0.25, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको टैली करना है, मतलब अब ये वाला डिसाइड करेगा कि इसको कितना ग्रीन देना पड़ेगा, इसको कितना ग्रीन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सेम रेशियो से आ रहा था, मतलब ईस्ट नॉर्थ साउथ से भी ये वाला है, ईस्ट वेस्ट में भी सेम था, मतलब इसको भी जितना ग्रीन देना है इसको भी उतना ही ग्रीन देना है, इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रीन, ठीक है। लेकिन अब इन दिस केस हम लोग का केस में ये आ रहा है 0.25, ये आ रहा है 0.33, अब सेम नहीं रहेगा। किसको ग्रीन ज्यादा देना पड़ेगा बोलो, नॉर्थ साउथ को या ईस्ट वेस्ट को, कौन सा फेज को ज्यादा ग्रीन देना चाहिए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब याद रखना कि एक साइकिल लेंथ जब बुझलाম না আরেকবার বলুন কি বললেন ये वाला रेशियो ज्यादा है, मतलब इसको हम लोग को ग्रीन ज्यादा देना है, ओके क्लियर। ये वाला मतलब कि देखो हमको डिवाइड साइकिल लेंथ, देखो साइकिल लेंथ जो है, सपोज साइकिल लेंथ 100 है, 100 सेकेंड हम लोग को डिजाइन करके 100 सेकेंड आया है, ठीक है। अब बोला गया है कि 100 सेकेंड में एक को ग्रीन देना है, और मतलब जब एक का ग्रीन होगा तो ऑब्वियसली दूसरे का रेड होगा, ठीक है। और जब इसका रेड होगा तो इसका ग्रीन होगा, तो ऑब्वियसली इसका रेड होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, एक साइकिल लेंथ एक्चुअली क्या होता है, इसका ग्रीन और इसका ग्रीन, राइट, मतलब दोनों का एडिशन, ठीक है। तो 100 सेकेंड में अब इसको कितना ग्रीन देना है, इसको कितना ग्रीन देना है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें भी 0.33 है, इसमें भी 0.33 है, मतलब ये वाला भी सेम। अगर 100 सेकेंड तुम्हारा साइकिल लेंथ आ रहा है तो 100 सेकेंड में हम बोलेंगे 50 सेकेंड ये वाला ग्रीन रहेगा, नॉर्थ साउथ लोगों को 50 सेकेंड हम देंगे, इस वाले को भी 50 सेकेंड हम देंगे, ठीक है। अगर ये सपोज 0.6 है, ये अगर 0.4 होता तो 100 सेकेंड अगर तुम्हारा टोटल साइकिल लेंथ है, तो टोटल साइकिल लेंथ में इसको 60 सेकेंड देना है, इसको 40 सेकेंड देना है, अगर ये 0.6 और अगर 0.4 ऐसा रेशियो होता तो, अगर, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इसका और इसका ऐड करेंगे, ठीक है। इसका we will add this two together, so what we'll get, we will get the sum of the critical flow ratio, that is capital Y। ये सब स्मॉल y था, अब कैपिटल Y देना है, तो कैपिटल Y कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 0.66 आ रहा है, क्योंकि दोनों का सेम था। अब यहाँ पे आएगा 0.33 प्लस 0.25 will give you 0.58, ठीक है। 0.58 is the total critical ratio, critical flow, okay, flow ratio। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। तो व्हाट इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, दिस इज द वेबस्टर फार्मूला, वेबस्टर फार्मूला का यही है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का, C0 इक्वल्स टू 1.5L प्लस y 1 माइनस y। इसीलिए हम लोग ये सब निकाल रहे थे, y क्यों निकाल रहे, कैपिटल L क्यों निकाल रहे, ठीक है। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड निकालो कितना आ रहा है, ये y का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 0.58, ओके, और L का वैल्यू आया था तुम्हारा कितना आ रहा था, L का वैल्यू 6 सेकेंड आ रहा था,
तो निकालो कितना आएगा। दिस इज y, ओके, नॉट 4, दिस इज y। तो ये है 0.58, ये है 6 सेकेंड। तो निकालो कितना आएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 0.58। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C नॉट? কত আসছে 1.5 into L হচ্ছে 6 plus 5 divided by 1 minus 0.58 33.33 21 এত কম এসেছে। ও সরি 1.5 into 6 plus 5 divided by 1 minus 0.58 33.33। Yes, 33.6 तो 33.33 आ रहा है। अभी फिलहाल इसको ऐसे रख दो, इतना सेकेंड, ठीक है। तो टोटल साइकिल लेंथ इज दी 33.33 सेकेंड, ओके। अब हमको क्या करना है, मतलब इस साइकिल लेंथ में तुम्हारा ये वाला फेस का ग्रीन, येलो, एम्बर, सॉरी ग्रीन, एम्बर, रेड रहेगा। इसमें भी सेम ग्रीन, एम्बर, रेड मिलाकर 30.33 होगा, ठीक है। दोनों का साइकिल देखो, दोनों फेस का साइकिल लेंथ इज सेम, मतलब एक ही साइकिल में ही तुम्हारा किसी का कभी ग्रीन आ रहा है, किसी का कभी रेड आ रहा है, ओके। अब क्या करना है कि हमको इफेक्टिव ग्रीन, मतलब ये वाला कितना ग्रीन लेगा, ये वाला कितना ग्रीन लेगा, वो इफेक्टिव ग्रीन हमको चाहिए। इफेक्टिव ग्रीन मतलब कि इफेक्टिवली कब इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी लॉस टाइम था हम उसको माइनस कर देंगे, साइकिल लेंथ से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। C नॉट, লেখাগুলো মুছে দিন ম্যাম। देखते C नॉट माइनस L, राइट। तो इफेक्टिव साइकिल, इफेक्टिव ग्रीन के लिए हमको पहले लॉस टाइम को माइनस कर देना है, मतलब कि कब इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब लॉस नहीं रहेगा तब, राइट। तो लॉस को माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 33.33 माइनस L इज 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अब टोटल न्यू साइकिल लेंथ, ठीक है। न्यू साइकिल लेंथ नहीं बोलेंगे, दैट इज साइकिल लेंथ विदाउट कंसिडरिंग द लॉस टाइम। अब उसमें से हमको भागाभाग कर देना है, मतलब तुमको कितना ग्रीन देंगे, हम उसको कितना ग्रीन देंगे। एज आई सेड, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वैल्यू। ये वाला वैल्यू कितना है इसका, ये वाला वैल्यू कितना है इसका, 0.33 था, इसका 0.25 था। अब रेशियो करेंगे, तुमको बोला है शेयर किए हो तुम लोग, कुछ प्रॉपर्टी शेयर किए हो, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिलेगा, जितना इन्वेस्ट किए उस हिसाब से। इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है 33.33 माइनस L 6, ठीक है। अब उसको हम लोग को शेयर कर देना है। तो कैसे करोगे, शेयरिंग का फॉर्मूला आता है ना, 100 चॉकलेट दिया है, ठीक है, सबने मिलकर खरीदा है 100, ठीक है। तो बोला गया है कि 2 क्लासरूम को डिवाइड कर देना है। अब 2 क्लासरूम को कैसे डिवाइड करेंगे, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक क्लास में 60 रुपीज दिया था, दूसरे क्लास में 40 रुपीज दिया था, ठीक है, ठीक है। तो अब जो 60 जितना था, 60 रुपीज जितना दिया था, उन लोगों को कितना चॉकलेट मिलेगा, 100 चॉकलेट है, ठीक है। ये वाला क्लास ने 60 रुपीज दिया था, ये वाला क्लास ने 40 रुपीज दिया था। तो ये वाला क्लास को कितना चॉकलेट मिलेगा आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 200 टोटल चॉकलेट्स है। आउट ऑफ 200 बोलो 200 चॉकलेट था, ये वाला 60 रुपीज दिया, ये वाला 40 रुपीज दिया, ठीक है। तो ये वालों को कितना मिलेगा, 120টা। कैसे आया, 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस कितना है 40, दैट इज 100 into 200, राइट। मतलब 60 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल इनटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट। तो कितना है 60 डिवाइडेड बाय 100 into 200 120, राइट। ऐसे ही सेम यही है 33.33 माइनस L 6, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन दोनों के बीच। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इसका रेशियो, ये जो है y का वैल्यू 0.33 डिवाइडेड बाय इन दोनों का समेशन इज नथिंग बट दिस वाला 0.58 जो आएगा। सो 0.33 बाय 0.58 इनटू C नॉट माइनस L, वही किया है यहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, 200 रुपए करके था, सॉरी 200 चॉकलेट्स था। इन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, 60 रुपीज इन्वेस्ट किया,
टोटल पैसा कितना कलेक्ट हुआ था, टोटल पैसा यहाँ से 60 रुपीज, यहाँ से 40 रुपीज, तो टोटल कितना है 60 प्लस 40। देखो YNS प्लस YES वही यहाँ पे किया है, एंड दिस इज दी Y। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन इक्वेशन किया है थीटा, तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 0.33 बाय 0.58 इंटू 33.33 माइनस 6 करो, कितना आएगा YNS कितना है, YNS तो 0.33 है। ओके, दिस इज योर 0.33 ओनली, और ये वाला है तुम्हारा 0.58, y का वैल्यू 0.58 है, राइट, मतलब 0.33 प्लस 0.25। C नॉट आया तुम्हारा कितना 33.33, और L का वैल्यू तो हमको पता है कितना है, L का वैल्यू है 6, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा, 33.33 माइनस 6 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 0.58, 15.54, राइट। तो आ रहा है यहाँ पे अप्रोक्स 15.55 हम लोग लिख सकते हैं, या 50.54, सॉरी 15.54 आ रहा है, सॉरी 15.54 सेकेंड। सिमिलरली इसका भी निकालो, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.58 इंटू 33.33 माइनस 6, कितना आएगा 11.78 इंटू 0.25, 11.78 आएगा, ठीक है, 11.78 सेकेंड। मतलब कि इसका ग्रीन कितना है, इसका ग्रीन है 5.54, इसका ग्रीन कितना है, इसका ग्रीन है 11.78, और तुम्हारा टोटल साइकिल लेंथ कितना है 33.33, ठीक है। अब तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो फेज 1 के लिए रेड सिग्नल कितना होना चाहिए, फेज 2 के लिए रेड सिग्नल कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करो। टोटल साइकिल लेंथ है तुम्हारा 33.33, ठीक है, टोटल साइकिल लेंथ इज 33.33, ठीक है, C नॉट। और ये वाला है तुम्हारा ग्रीन, ग्रीन आ रहा है इतना G1 फेज 1 के लिए, और ये G2 है, ठीक है। तो इसका रेट कितना होगा, इसका रेट कितना होगा, R1 R2 निकालो। ये वाला फॉर्मूला से तुम लोग निकाल सकते हो, ओके। चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा जो साइकिल लेंथ 33.33 जो कैलकुलेट किए थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। ये ग्रीन इफेक्टिव फॉर नॉर्थ साउथ, ग्रीन इफेक्टिव फॉर ईस्ट वेस्ट, और रेड का ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो किया था N1 - A, ठीक है। और दिस इज एम्बर 1 एम्बर 2 गिवन, कैलकुलेट करो 33.33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। एंड आफ्टर दैट ट्राई टू फॉलो दिस डायग्राम। अभी फिलहाल आज इतना दूरी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फेज डायग्राम तुम लोग ट्राई करके असाइनमेंट में सबमिट करना। हम एक्सटेंड कर दे रहे टाइम को, ओके, टिल टुडे इवनिंग 5 PM तक तुम करो इसको फेज डायग्राम के साथ सबमिट करना। अगर एक हो गया तो एक सबमिट कर दो, फिर ठीक है, उसके साथ बाद में अटैच कर देना ये वाला भी। ম্যাম পরে ম্যাম ঠিক অ্যাটাচ আছে। করতে হলে ওটাকে ম্যাম আনসাবমিট করে আবার অ্যাটাচ করতে হবে, ওই করব। আনসাবমিট করতে হয়? হ্যাঁ। ও তাহলে ঠিক আছে, তোমরা পরে একসাথেই করে দাও তাহলে। একটা তো ম্যাম করে দিয়েছি। করে দিয়েছো? হ্যাঁ। ঠিক আছে তাহলে আবার করে দাও। তাহলে আনসাবমিট করে আবার সাবমিট করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ করে নাও। তাহলে আপনি পুরো টোটাল টাইমটাই বাড়িয়ে দেবেন। দাঁড়াও একটু ফটোটা নিয়ে, এটা কি বলছো? টোটাল টাইমটাই ম্যাম তাহলে বাড়িয়ে দেবেন সাবমিট করার।